Yes, good morning everyone. Am I audible? Okay, okay. Okay, almost everyone is here. Chaliye, let's mark your attendance with your full name and section fast. Yes, done? Attendance done? Okay, fine. So, and what about morning prayer? Done? In the first class? Okay, chaliye, very good. So, let's start our class. I think we are done with exercise 7.1, right? Is there any doubt? Chetna, question number 11 clear? Okay, okay. No doubt in 7.1? Yes, Sanya? Okay. Swara is saying no doubts, ma'am. Fine. So let's start a new topic. I'm going to share my screen. Fine. So today we'll do the concept of types of fractions, right? In our very first class of this chapter, हमने discuss किया था there are some fractions जिन्हें हम justify नहीं कर पा रहे थे ना? Yes. Okay. So today we'll talk about those fractions. For example, if I'll say 2 by 3, that means total parts are 3 और shaded parts, colored parts, taken out parts या जिन parts की हम बात कर रहे हैं वो है 2. Fine. So 2 by 3 हम justify कर पा रहे हैं. But if I'll say 3 by 2, तो एक confusion हो रहा था कि if total number of parts are 2, so how is it possible that 3 parts are shaded? Right? So हमने इतना दे सुना कि ऐसे fractions जो 2 by 3 है जिनका denominator बड़ा है, ऐसे fractions जिनका denominator बड़ा है, numerator is smaller than denominator, are proper fractions. And what about these fractions? They are improper. So the fractions in which the value of numerator is always greater than the value of denominator are improper fractions. ठीक है? Proper fractions exist.
प्रॉपर फ्रैक्शंस की जस्टिफिकेशन है, प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. बट व्हाट अबाउट दीज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस? नाउ टुडे वी विल सी how we can justify these improper fractions also. See, so in proper fractions, numerator is less than denominator. ठीक है, इतना हमें क्लियर है. Like 1/4, total parts are 4, out of which one part is colored. Improper fraction is numerator is more than denominator. Like 7/6, total number of parts are 6 and 7 parts are colored. How is it possible? अब हम देखते हैं, क्योंकि improper fractions की कोई justification नहीं है, बहुत confusion है, so mixed fraction का concept आया. Now improper fractions are converted into mixed fractions, ताकि हमें समझ में आए कि actually क्या information impart करना चाह रहे हैं improper fractions. So mixed fractions क्या होते हैं? Combination of a whole number and a proper fraction. Now see, if I'll say total number of colored parts are 7, like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So total number of colored parts are 7, but total number of parts in a whole, एक चीज को कितने में डिवाइड किया? 6 पार्ट्स में. इस सर्कल को भी 6 पार्ट में डिवाइड किया और इस सर्कल को भी 6 पार्ट में डिवाइड किया. तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये कहना चाहता है कि हमने एक चीज को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन हमारे पास पार्ट्स कितने? 7. दैट मीन्स हमारे पास वो जो कंप्लीट थिंग थी वो कितनी है? जो कंप्लीट सर्कल थे वो कितने हैं? 2. देयर आर 2 कंप्लीट सर्कल्स. एक सर्कल को वी हैव डिवाइडेड इन 6 पार्ट एंड टोटल 7 पार्ट्स आर कलर्ड. इज इट क्लियर? बट 7/6 लग नहीं रहा ना कि ऐसा कुछ कह रहे हैं. हम ये भी तो कह सकते हैं कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन अ होल एंड टोटल नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट्स इन अ होल. तो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन 2 होल सर्कल्स कैसे कह सकते हैं? राइट, कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में. सो इसलिए हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को, कोई कंफ्यूजन ना हो, विल कन्वर्ट, हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस में. इज इट क्लियर? Is it clear everyone? चलिए, now let's see how to convert these improper fractions into mixed fractions. Simran is coming. Okay, fine. So यहाँ से हमें पता चला there are 3 types of fractions: proper, improper and mixed fractions. Right, now see. Improper fraction to mixed fraction. First we'll learn how to convert improper fraction into mixed fraction. So there are basically 2 steps. First step is to divide and the second step is decompose in the form of QR/D. साइंस में decompose word पढ़ा होगा ना, जिसमें हम छोटे छोटे टुकड़ों में चीजें कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं. यही था ना, साइंस में डिकम्पोजिशन पढ़ा है ना, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो क्या होता है डिकम्पोजिशन में? वो छोटे छोटे पार्ट्स में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है कॉम्प्लेक्स चीजें. राइट, सो द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ हम लगाएंगे. फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड एंड द सेकंड स्टेप इज टू डिकम्पोज इन द फॉर्म ऑफ QR/D. नाउ सी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 7/3 एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 7/3 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हमने फर्स्ट स्टेप किया डिवीजन. 7/3, न्यूमरेटर will act as dividend and denominator will act as divisor. डिवीजन करके हमें क्वेश्चन मिला 2, डिवाइजर था 3 एंड रिमाइंडर मिला 1. अब हमें इसे डिकम्पोज करना इन द फॉर्म ऑफ QR/D. दैट मीन्स क्वेश्चन विल राइट हियर, देन विल राइट रिमाइंडर एंड देन विल राइट डिनोमिनेटर, दैट इज डिवाइजर. फाइन, सो क्वेश्चन इज 2 in this case, then remainder is 1 and divisor is 3. That means 7/3 is an improper fraction. इसको हमने जब कन्वर्ट किया मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो इट बिकम्स 2/1/3. नाउ दिस 2/1/3 मीन्स देयर आर 2 थिंग्स, 2 कंप्लीट, 2 पूरी पूरी चीजें हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और जो थर्ड चीज है ना उसमें से देयर आर 3 पार्ट्स आउट ऑफ विच वी आर हैविंग ओनली 1 पार्ट. समझ में आ रहा है? 2/1/3 का मतलब क्या हुआ? 7/3 मीन्स देयर आर टोटल 3 पार्ट्स. ये इम्प्रॉपर में ये कहना चाह रहे हैं द कलर्ड पार्ट्स
और जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो 7 है। तो जब हमने इसे कन्वर्ट किया तो देखा 2 1/3, 2 1/3 मीन्स 2 इज अ होल नंबर, 2 इज अ होल नंबर। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि जो होल नंबर की फॉर्म में आ रहा है दैट मीन्स उतनी चीजें कंप्लीट है हमारे पास। तो 2 1/3 मीन्स 2 थिंग्स आर कंप्लीट एंड देन 1/3, दैट मीन्स जो थर्ड चीज है उसका 1/3 पार्ट है हमारे पास। मतलब अगर हमने थर्ड सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड किया तो हमारे पास 1/3 और उससे पहले 2 तो हमारे पास थे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? यस, शो मी योर थम्स अप लाइक दिस। इज देयर एनी डाउट? ये पूरी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगी मैं, बिकॉज बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस है, सीधे हैं बिल्कुल। ठीक है, ओके चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। आप लोग सॉल्व करके बताओगे मुझे। कन्वर्ट करो 9/5 इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन फास्ट। Yes, Nishant, do unmute yourself. 1 whole and 4 out of 5. 1 whole and 4 out of 5. 5. Okay. 1 4/5. चलिए देखते हैं निशांत, वेरी गुड। Anyone else? Yes, Sharon. Do unmute yourself. Mine is also same like Nishant, 1 whole and 4/5. Okay, very good, Sharon. मेघा आपने क्या सॉल्व? यस, बताइए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, योर आंसर। Ma'am, 1:4/5. 1:2 नहीं, is to तो हम रेशियो में यूज करते हैं, तो विल से 1 4/5 और 1 होल एंड 4/5। फाइन, चलो वेरी गुड मेगा। अब देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। 9/5 क्या था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड। तो हम सबसे पहले 9/5 को डिवाइड करते हैं, यहां करते हैं। ओके, सो 5 times 1 is 5, remainder is 4. Division is done. Now the second step is decompose in the form of QRD. So Q, quotient is 1 RD. R means remainder, which is 4 upon में divisor 5. That means 1 whole and जो second complete thing है उसमें 5 parts हैं and 4 part जो है वो shaded है या colored है। ठीक है, so 1 4/5। समझ में आ गया हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस? आशमान, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विल सी हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, कभी भी जब हम क्वेश्चन करेंगे फाइनल आंसर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं छोड़ते। ठीक है, क्योंकि हम उन्हें जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर कभी भी आगे जाकर भी किसी बड़ी क्लास में अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की टर्म्स में आता है तो दैट मीन्स कि वो अंडरस्टूड है कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर? But still we'll learn how to convert mixed fractions into improper fractions. Now see. Next is conversion of mixed fraction to improper fraction. The method is MAD method. अब देखो इस method में क्या, very first step is multiply, then add and then denominator. So multiply denominator by the whole number, add the product with the numerator, and the third step is denominator will remain same. देखते हैं, 1 4/5 is the mixed fraction. Fine, अब हमें इसे convert करना है, हम step by step चलेंगे। The very first step is multiply denominator. Denominator जो नीचे है उसको multiply करेंगे whole number से. That means 5 times 1 is 5. Very good. अब जो हमारा प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट क्या है मल्टीप्लाई करके 5, एड द प्रोडक्ट विद द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज जो ऊपर है नंबर, उसमें हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। सो 5 + 4 इज 9। दैट मीन्स
अभी हमारा क्या है 9. ओके, नाउ 9 हो गया, इतना हो गया, फाइन. नाउ द नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम. अगर डिनोमिनेटर 5 था मिक्स्ड में तो अभी भी 5 रहेगा. दैट मीन्स 1 4/5 is equals to 9/5. Is it clear? Yes, everyone. Method MAD. The very first step is multiply denominator by whole number. The second step is add the product. जो multiply करके product आया उसमें add करेंगे numerator. And the third step is denominator will remain same. Fine. चलिए एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको. Convert 2 3/7 into mixed fraction, improper fraction. Fast. Yes, Harshad. Harshad, have you done? आपसे हुआ ये क्वेश्चन? 2 3/7. Harshad, do unmute yourself. Am I audible? Yes, Harshad. He is not responding. Harshad, you can write your answer in chat box, dear. Saksham. Saksham Rao. Yes, Saksham. बताइए. 2 3/7. Yes, ma'am. 2 3/7. Ma'am, 2 3/7. Yes. Ma'am, 17/7. 17/7. 7. वेरी गुड सक्षम. अभी देखते हैं. यस शेरविन, सही बताया सक्षम ने. मेघा, इज इट राइट? यस और नो? ओके ओके, चलिए लेट्स सी. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय होल नंबर. तो डिनोमिनेटर क्या है 7, इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये नहीं सोचना है होल नंबर तो 3 भी है 7 भी है. होल नंबर मीन्स देखो ये अकेला है 2. 3/7 फ्रैक्शन के पार्ट है. फाइन. सो हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से. 7 times 2 is 14. प्रोडक्ट आया 14. वेरी गुड. नाउ ऐड द प्रोडक्ट विद न्यूमरेटर. अब हम इस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर इज 3. So 14 plus 3 is 17. And the denominator, third step is denominator will remain same. So denominator was 7. So denominator is 7. 17/7. Is it clear? Any doubt in these conversions from mixed to improper, from improper to mixed? No doubt? Wait. Yes, students. Is there any doubt? आगे बढ़े. चलिए. Very good. Now the last topic is how to represent proper or improper fractions on number line. Fine. इसको समझने के लिए पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा. Improper fractions exactly क्या होते हैं? Like 2/3, 5/7. That means हमारे पास एक complete चीज है. 1 में से हम कुछ देख रहे हैं. पार्ट ऑफ 1. तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होंगे? 1 से छोटे होंगे या 1 से बड़े होंगे? क्या होंगे? स्मॉलर देन 1 और ग्रेटर देन 1. प्रॉपर फ्रैक्शंस स्मॉलर देन 1 ना. स्मॉलर देन 1 इसलिए क्योंकि हम एक कंप्लीट चीज की बात करते हैं, उसके पार्ट्स करते हैं और उसमें से किसी एक पार्ट की बात करते हैं. तो वो ऑब्वियस है 1 के अंदर ही होगा. बट व्हाट अबाउट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस?
They are greater than 1 or smaller than 1? Yes, everyone. Greater than 1. Very good. Very nice. So, proper fractions are smaller than 1 and improper fractions are greater than 1. इन दो कॉन्सेप्ट्स को याद रखेंगे और हम अपनी नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे वेरी इजीली. नाउ सी, फॉर एग्जांपल, यस है, यहां देखते हैं. अभी हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं 2/3. The very first step is to check whether the given fraction is proper or improper. So what about 2/3? 2/3 is proper fraction. Very good. 2/3 is a proper fraction. और अभी हमने देखा कि 2/3 is less than 1. 1 से छोटा होगा ना, तो अब जो हम नंबर लाइन बनाएंगे वो बनाएंगे from 0 to 1 only. From 0 to 1 only. क्योंकि ये इसी के बीच में आएगा 2/3, क्योंकि 1 से छोटा है. Now total number of parts are 3. तो ये जो 0 से 1 तक एक चीज है हमारे पास, जो भी है वो एक कंप्लीट है. अब हम इस कंप्लीट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. राइट. अब हम इनकी नेमिंग करेंगे. दिस इज 1/3, मतलब फर्स्ट पार्ट है ना, 3 पार्ट्स में से एक पार्ट. यहां तक कितने पार्ट्स हो गए? 2. वेरी गुड. सो इट्स 2/3. ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वेट, देखो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना. अभी विल डिवाइड अगेन. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 चाहिए. सो फॉर 3, 0, 1 and 3 parts like this. First part, second part and third part. Right. Now this is 1/3. मतलब 3 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट ये है और ये है 2/3. राइट. यहां तक हमने 2 पार्ट्स कैलकुलेट करे. और अगर हम यहां बात करें 1 पोजीशन की, तो 1 इज इक्वल्स टू 3/3. 3/3 क्यों? क्योंकि 1 कहां पर है? बिल्कुल लास्ट थर्ड पार्ट पर है ना. इज इट क्लियर? नेमिंग समझ में आ रही है? 0, then 1/3, then 2/3, then 3/3. इज इट क्लियर? चलिए, इतना हमें समझ में आ गया. अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? 2/3. तो हम यहाँ 2/3 दिखा देंगे कि 2/3 इज हियर. राइट. तो हमने ये देखा कि जब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, हम जो नंबर लाइन बनाएंगे वो 0 से 1 तक की बनाएंगे. सिर्फ 0 से 1 तक के बीच में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स करेंगे और जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करना है उस पार्ट पे सर्कल कर देंगे. इज इट क्लियर? यस शेरिन, व्हाट हैपेंड? Yes, Sharon. Mom, am I audible? Yes, yes. Mom, I want to ask that why we have only drawn the line from 0 to 1? 0 to 1 because proper fractions are less than 1 and proper fractions are not negative. Negative तो है नहीं, तो 0 से हम और भी ज्यादा लेफ्ट में नहीं जाएंगे और हम 1 से राइट में भी नहीं जा सकते क्योंकि 1 से तो छोटे ही है ना. That means proper fractions always lies between 0 and 1, isn't it? 0 से छोटा हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो है नहीं, और 1 से बड़ा हुआ तो इम्प्रॉपर हो जाएगा, इम्प्रॉपर भी नहीं है. दैट मीन्स हमारे पास लिमिटेड एरिया है which is from 0 to 1. Is it clear? Mom, to the 1 represents the whole part, means the 3. Yes, 1 represents 1 toffee, means the complete toffee, isn't it? 1 chocolate, complete chocolate, 1 circle, तो 1 represents whole. ठीक है, चलो, okay. Now see, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो 8/10, 8/10. Now 8/10, the very first step is to check whether the given fraction is proper or improper. 8/10 is proper. Very good. 8/10 अगर proper है तो ये भी कहाँ lie करेगा? From 0 to 1. अब यहाँ देखो from 0 to 1. अब यहाँ पार्ट्स कितने करेंगे हम? टोटल पार्ट्स है 10, तो हमने 10 पार्ट्स करे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 पार्ट्स करे. 8/10. ओके. अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? 8/10. सो हम यहाँ ऐसे सर्कल लगाएंगे कि दिस इज 8/10. समझ में आ रहा है?
प्रॉपर फ्रैक्शंस अगर होंगे तो विल ड्रॉ नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 1, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मार्क करेंगे एंड देन हम अपने पार्ट को प्लॉट करेंगे. इज इट क्लियर? हाउ टू रिप्रेजेंट प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन? यस सानिया, इज इट क्लियर? Sanya? Okay, very good. So now see, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, बट व्हाट अबाउट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? अब अगर मैं कहूं मुझे रिप्रेजेंट करना है 7/6, 7/6. अब देखो, the very first step is to check whether the given fraction is proper or improper. Now 7/6 is improper fraction. तो क्या ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा? नो, 0 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा ना. और हमें आगे का भी कुछ नहीं पता. जब अभी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ओके 6/7, 7/6. तो मिक्स फ्रैक्शन में पता चलेगा कितना कंप्लीट है हमारे पास. लाइक दिस, अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं 7 then 6 times 1 is 6, 1 QRD, that means 1/6. यही है ना. इसका मतलब क्या है कि 1 होल और दूसरा क्या है प्रॉपर 1/6. अभी तो चलो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमने एक नंबर लाइन बनाई फ्रॉम 0 to 1 और 1 तक. देखो यहाँ पर क्या था, इस वाले नंबर लाइन को देखेंगे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 and this one is 6/6. It is 6/6 ना. Just 1 second अक्षिता. 1 is 6/6. अब 1 के बाद क्या होगा? 7/6. 1 के बाद आ जाएगा ना, 6/6 के बाद. यस, 7/6 आ गया. हमने कंप्लीट कर दिया और हम शो भी कर पा रहे हैं कि देखो एक चीज तो हमारे पास पूरी है कंप्लीट, और जो नेक्स्ट है उसमें से अभी हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही लिया है. ठीक है. लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन ऐसा आ जाए 7 2/9, तो अब हम तो ऐसे तो हम नंबर लाइन पे कंप्लीट दिखाते रहेंगे, पहले 0 to 1, फिर 1 to 2, फिर 2 to 3. तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 1 बनाएंगे. ठीक है. और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हम 1 के थोड़ा सा आगे कहीं पर भी रैंडम शो कर देंगे. ठीक है. लेकिन अगर हम बिल्कुल प्रॉपर शो करना चाहते हैं तो हमें पूरी नंबर लाइन शो करनी है. अगर मैं कहूँ आप शो करो 21/6, तो फिर लिखते रहो 6/6, 7/6, 8/6, पार्टीशन करते रहो. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, देयर आर 5 फ्रैक्शंस गिवन, आउट ऑफ विच 4 आर प्रॉपर एंड 1 इज इम्प्रॉपर. तो वो जो 4 प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे फ्रॉम 0 to 1, और जो इम्प्रॉपर होगा ना हम उसको 1 से थोड़ा आगे कहीं भी दिखा देंगे कि ये यहाँ लाई करेगा. इज इट क्लियर? यस अक्षिता, आप बताओ आप व्हाट हैपेंड. Ma'am, as you converted like mixed fractions into improper fractions, so ma'am, how we solve it in the like our notebooks when there is ओके. हाँ, वो मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है. देखो and we just show. देखो पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बताओ. यहाँ कोई डाउट? Conversion from mixed to improper, from improper to mixed, and representation of proper or improper fractions. No? चलिए अब देखते हैं. सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें कन्वर्जन करना है इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर आपको लगता है कि आपको इसी तरह याद रहेगा डिवाइड एंड डिकम्पोज, तो आप स्टेप बाय स्टेप करो. सबसे पहले क्वेश्चन लिखो 7/3, देन यू विल राइट डिवाइड पूरा सम शो करो डिवीजन का, जैसे इसमें सेकंड स्टेप में शो किया हुआ है. देन इन द थर्ड स्टेप आप डिकम्पोजिशन वाली फॉर्म लिख दो QR/D. फाइन, नीट एंड क्लीन. अगर आपको लगता है कि आपको स्टेप्स याद है, आप कर लोगे, तो ठीक है, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेप लिख दो या फिर नोट्स की तरह स्टेप्स लिख दो और फिर नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर लो. ठीक है. फर्स्ट यू विल राइट क्वेश्चन, देन डिवीजन एंड देन द फाइनल आंसर. This is how we can solve the questions from improper to mixed. Now what about mixed to improper? सबसे पहले we'll write mixed fraction. उसके बाद काफी बच्चों को लगता है कि हम लिखेंगे कि हमने पहले मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, तो वो लिख सकते हैं. पूरा फॉर्मूला में ऐड लिखना है. तो अगर आप एरो से शो करना चाहते हो कि देखो इस तरह डिनोमिनेटर होल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्रोडक्ट प्लस हो रहा है, तो वो भी आप कर सकते हो. वर्किंग में यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन आपको फाइनल आंसर नीट एंड क्लीन लिखना है कि दिस इज द फाइनल आंसर. इज इट क्लियर?
ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन और नंबर लाइन करे. यस अक्षिता. यस. There is like one more, like it's a formula that W into D हाँ, plus N that by is D. the whole number into denominator plus numerator. तो आप पूरा formula Numerator. याद रखना चाहते हो, आपको मेमोराइज करना है वो, दैट्स गुड. मुझे लगा रोट मेमोराइजेशन में काफी बच्चों को दिक्कत होती है, तो मैंने इस तरह एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, आपको वर्किंग में आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन आप जो भी मेथड मैथ्स में यूज कर रहे हो आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए. ठीक है. एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन आप बनाओगे पेंसिल से, स्केल से. उसके बाद अगर 5 फ्रैक्शंस गिवन है तो नो नीड टू राइट ऑल द पार्ट्स कि 1/2 इज दिस, 2/2 इज दिस, या 1/2, 1/6, 2/6, 3/6. नो, नंबर लाइन बनाओ, पार्टीशन करो, और जितने रिप्रेजेंट करने हैं सिर्फ उन्हीं के आगे लिखो नाम. ठीक है. एनी अदर डाउट? दर्शिका, इज इट क्लियर? यस निशांत. यस. Will we learn equivalent fractions? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यू हैव टू राइट नोट्स. फिर वो ड्रॉ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अभी हम करेंगे ना इस क्लास के बाद, देन आई विल गिव यू नोट्स एंड एवरीथिंग. फाइन, अभी पहले ये करते हैं, 7.2 कंप्लीट करते हैं. ओके, हो जाएगी 7.2. नाउ वन मोर थिंग, देयर आर 3 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 7.2. अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा तो आप देख लेना, एक दिन और दे दूंगी मैं, अदरवाइज कंप्लीट कर लेना उसको आज ही. ठीक है, क्योंकि तीनों क्वेश्चंस इजी हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है. ठीक है, फाइन. अब अगर कोई ऐसा है जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं करी हो तो पहले अटेंडेंस मार्क करो फास्ट. डन. चलिए बताइए, और कोई डाउट इन 7.1, 7.2? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विल डू टुमारो, राइट? हो जाएगा. जिनके पास बुक्स हैं अभी वो एक बार चेक करो, 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तीनों क्वेश्चंस आज में. अगर ज्यादा लगेगा, बाकी सब्जेक्ट्स का भी काम है, तो इट्स ओके, फिर आप मुझे बता देना कल. ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है कि वो आज ही कंप्लीट हो जाए. फाइन. Yes, Lakshya, is there any doubt? Mansha, Tisha, Sana. Okay, एक doubt आया. Ma'am, in formula mad, with which whole number we have to multiply? Yes, Tisha, very nice question. Which whole number? Now see, if fraction is like 2, 3/4. ये मैंने पहले भी बताया और आपको ध्यान भी रखना है. See. Wait. If fraction is something like this, 2, 3/4, 2, 3/4. हमें ऐसा नहीं सोचना है कि तीनों ही नंबर्स होल नंबर है. अब देखो बच्चे, टिशा, ये 2 जो है यही होल नंबर है, बाकी 3/4 तो फ्रैक्शंस के पार्ट है. 3 इज न्यूमरेटर, 4 इज डिनोमिनेटर. तो हम इनको ऐसा होल नंबर अभी कंसीडर नहीं करेंगे. होल नंबर इज 2 ओनली, जो कंप्लीट है. फाइन. तो जब हमें होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर को हम हमेशा आगे जो नंबर है अकेला उससे मल्टीप्लाई करेंगे. इज इट क्लियर? 3 और 4 को अगर हम अकेले देखें तो दे आर होल नंबर्स, बट हियर दे आर द पार्ट ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है, 3 and 4 are numerator and denominator. Is it clear, Tisha? Yes, Tisha, is it clear now? Okay, चलो. Any other doubt? तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है. जो कंप्लीट, जो आगे है ना नंबर, वहां से मल्टीप्लाई करना है, उससे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और फिर उसमें न्यूमरेटर ऐड होगा और देन लास्ट में डिनोमिनेटर सेम रहेगा. ठीक है, सो होमवर्क रहेगा आपका 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. उसके बाद अगर नहीं होगा तो देखेंगे, अगर स्टिल कोई डाउट रहता तो फिर आप मुझे फोन कर लेना.
ठीक है, शेरिन, ये शेरिन बताओ, एनी डाउट? Want to ask that if there is a mixed fraction, so we will convert it into improper and then we can show it on number line. हाँ, यस, ठीक है ना. एंड वन मोर थिंग, अगर आप कभी भी, इट्स नॉट अबाउट 6th 7th ओनली, अगर आप कभी भी फ्रैक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और फाइनल आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर कभी नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा उसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे. क्योंकि अगर जिस चीज की जस्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है, अगर इम्प्रॉपर हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है, हम उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तभी हमने कन्वर्जन, ठीक है, तो कभी भी फाइनल आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं छोड़ते. इज इट क्लियर? फाइनल आंसर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, चलिए, लेट्स एंड दिस सेशन हियर. ओके, बाय एवरीवन.